हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। सो वी हैव माय फ्रेंड जन्मेजय हियर विद अस टुडे। जन्मेजय एनालिटिक्स कंसल्टेंट है एंड दिस इज सच अ नीश प्रोफाइल ऑफ जन्मेजय। पहले तो कूडोज टू यू फॉर गेटिंग इनटू दिस प्रोफाइल। ऑल्सो जन्मेजय जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ ही इज लीडिंग द डेटा इंजीनियरिंग टीम। सो अगेन जन्मेजय, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट एज वेल। सो टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स फॉर वाचिंग टुडे, आज हमारा जो कनेक्ट करने का जन्मेजय से पर्पस है वो यही है कि वी गेट अ इनसाइट ऑफ हिज नीश प्रोफाइल। एंड अगर कोई हमारे एस्पिरेंट्स है वांट टू गेट इनटू दिस प्रोफाइल, तो वो इस प्रोफाइल में कैसे दे कैन मेक अ करियर। सो थैंक्स जन्मजय फॉर बीइंग ऑन बोर्ड, थैंक्स फॉर योर टाइम। और ऑल ऑफ द व्यूअर्स आर वाचिंग, मैं अभी से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करना प्लीज, चैनल को मत भूलना। सो प्लीज गिव ऑल ऑफ योर लव एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सी ए प्राची उपाध्याय। जन्मजय, over to you. Thanks again for being with us today. Sure. Thanks, Prachi, for inviting me. And I think we have done a similar session like 3, 4 years back in COVID, Yes. right? So yeah, my name is Janvij and I'm working in a company called EXL Services as a senior consultant. And in total, I have 7 years of experience in like consulting and data science, data analytics, BI, data governance, and data engineering. And yeah, like it's a like lucrative field because everything around the world is data and AI based right now. So it's a like great field to be in. Yes, Janmajay, like indeed it is such a great field to be in। और जैसा आजकल हम पढ़ भी रहे हैं, like with all of the new technology, especially with जो AI अब हमारी लाइफ का लिटरली एक पार्ट बन चुका है। सो लाइक हमें फाइनेंस भी कहा जाता है। सो पीपल हु आर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, कोई भी हो फाइनेंस प्रोफेशनल या कोई भी अदर प्रोफेशनल्स भी हो, दिस इज द बेस्ट फील्ड दैट यू कैन बी इन। सबसे लुक्रेटिव है करियर वाइज, सबसे लुक्रेटिव है ग्रोथ वाइज। और हमेशा कहा जाता है कि जो टेक और जो फाइनेंस का जो ब्लेंड है, दैट इज द हॉटेस्ट थिंग ऑन द मार्केट राइट नाउ। सो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप जो फील्ड में है, अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड में, तो क्या उसको करना पड़ेगा? मतलब हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ योर टीम और योर फील्ड? So like there are two parts of the question. One is like data science and आप कह रहे हो finance professional के लिए specific, right? So हाँ। right now it is the hottest field to be in fintech and probably in 2025 because of regulation changes ये field और ज़्यादा boom होगा and if you're like learning the word like AI and like AI agents LLM these sort of chat GPT thing is like booming up right now. तो इस फील्ड में बेसिकली आने के लिए कोई भी आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरली एन स्टेम फील्ड बट यस यू नीड टू हैव सम बैकग्राउंड इन स्टैट्स और मैथ लाइक आपको 12th तक का या 11th तक का मैथ्स इफ यू नो बट एंड इफ यू आर also average in math that's also fine. You don't need to know all the codes because chat gpt अब सारे codes लिख रहा है राइट। but you need to have some understanding around data, how data looks like, and you can simply start by watching videos on YouTube. You don't need to pay actually for the courses, but because जैसे आप लोग शायद finance professional अश्वथ दामोदरन को जानते हो, he is best in field in valuation. Similarly in AI there is a guy called Andrew Ng, right? तो यस, आई उसके हर्ड YouTube ऑफ videos, हिम। आई हर्ड yes, सो so मच ऑफ हिम। basically या Coursera basically उसने फाउंड किया है एंड हाँ, राइट, deeplearning.ai राइट। करके एक there's a website you can check out that. It's also good and YouTube पे उसका सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है. But if you really want to enter the field then you need to have some certification because you are an outsider. आपको हाँ। acceptance तब मिलेगा when you have some sort of uh, projects or like certification to prove that you know something so yes, and now I'm seeing a lot of like data science professionals are going into CFA to learn हाँ, finance, दैट and a lot of finance करेक्ट। people are like doing data science stuff because it's a like its combination is like very यस। useful अभी के लिए. नहीं, थैंक यू सो मच जन्मजय, लाइक दिस वाज वेरी हेल्पफुल। आपने सर्टिफिकेशंस के बारे में बोला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक अगर टॉप ऑफ द माइंड अगर आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेशन पता है, और किस फील्ड में Yeah. सपोज करना चाहिए, लाइक पाइथन बहुत सुनते हैं, मशीन लर्निंग बहुत सुनते हैं, एआई बहुत सुनते हैं, तो क्या किस फील्ड में हमें सर्टिफिकेशन करना चाहिए? Basically, I would say कि it depends like on the background. अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आ रहा है या स्टैट्स बैकग्राउंड से आ रहा है तो प्रॉब्ली उसको मैथ्स उतना जाना जरूरत नहीं होगा. उसने ग्राफ वगैरह देखा होगा, राइट? राइट। बट समवन हु इज कमिंग फ्रॉम प्योरली कॉमर्स बैकग्राउंड जिसने मैथ्स प्रॉब्ली नहीं लिया हो 12th में या फिर उसने लिया हो तो नंबर्स लिया हो और शायद स्किप कर गया होगा मेजर
portion. That's me. Probably वहाँ People who skipped maths yeah, in class 12th. That's me. then for like people like you, it would be a good start to learn some stats, right? Mhm. And then go into like take a primary course on Python, like simple like data को आपको number crunch करना आना चाहिए basically. अगर आप Excel use कर रहे हो, सेम काम अगर आप Python में कर रहे हो, this is good enough. बट मेजर चीज आपका है कि आप सीखो कि आप उसको यूज कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे रियल लाइफ में. Mhm. प्रॉब्ली आपको उतना टेक सेवी नहीं होना चाहिए. आपको एज अ टॉप लेवल आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीजें हो रही हैं, व्हाट आर द यूज केसेस, आप कौन से चीज में घुसना चाहते हो. लेट्स से कि आप क्रेडिट रिस्क में हो या रिस्क साइड में हो, Mhm. तो प्रॉब्ली आप देखना चाहोगे कि फ्रॉड डिटेक्शन में भी, क्रेडिट रिस्क या फिर रिस्क Right. मैनेजमेंट साइड में बहुत सारे एआई के यूज Mhm. केसेस हैं, राइट? तो आप वो देखोगे. बट अगर आप रेवेन्यू साइड पे हो, तो प्रॉब्ली आपका रेवेन्यू Right. प्रोजेक्शंस एंड ऑल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. तो आपको अपने यूज केस के हिसाब से यू हैव टू कस्टमाइज दैट. बट एट अ हायर लेवल आपको एक हाँ, एमएल का बेसिक कोर्स कर लेना चाहिए, जो कि got यूट्यूब it. पे हाँ. अवेलेबल है. वही कोर्सेरा पे यू विल गेट अ बिगिनर लेवल कोर्स व्हिच इज आई थिंक नॉट हार्ड टू डू. It will take time because you are like new to the field, but yes, it's not hard. Gott it. I think मैं भी काफी टाइम से सोच रही हूँ to do something on the tech side. Last मैंने जो NFT पे कोर्स किया था, that was from Udemy. But हाँ, मतलब I think I'll just keep it on my bucket list, something to do for this year. But yes, thanks Janmaj. That's like really very helpful. जन्मज, हम और इस बारे में बात करते हैं कि what are the career prospects, growth prospects क्या होते हैं इस फील्ड में, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में अगर बता पाए तो. So basically it depends again, because the field is evolving every single day. Yes. Like 2024 was the year of LLMs, right? You have heard about Mhm. Cloud, ChatGPT, Right. हाँ हाँ Gemini, हाँ. Word, and lot of like LLM based models, and you have apps and everything. Mhm. This year is basically AI agent का year, Okay. right? And आप सुन रहे होगे कि एक बहुत सारे वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड Correct. दे कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. लाइक Yes. ऑडिट सर्विसेज, फाइनेंस का प्रोबब्ली इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, प्रोबब्ली. आई एम नॉट Yes. स्केयरिंग ऑफ पीपल, बट यस, हाँ. ऑडिट जो सर्विसेज आप देखोगे उसमें काफी सारे बिग चेंजेस दिखेंगे, प्रोबब्ली. एट अ यूएस लेवल एटलीस्ट देयर वुड बी जॉब कट्स इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ. क्यों? क्योंकि वो सारे काम एआई एजेंट्स कर देंगे, Mhm. राइट? सो आई वुड से कि ये जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा lucrative इसलिए होने वाला है बिकॉज यू आर लाइक ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी, राइट? Right. तो आप जितना ज्यादा बिजनेस में कंट्रीब्यूट करोगे, यूल सैलरी बी लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, एंड सो इज द ग्रोथ, राइट? तो yes, and even in the organization you are working, I was in the same organization a few years back, right? So there the guy was a CFA and he was leading the data science project, Right. right? Right. So Yes. of course, एंड इन द कंपनी लाइक प्राइवेट इक्विटी में आप छोड़ के डेटा साइड में आ रहे हो, तो यू नो कि इट्स द lucrative field, right? That is why Right. people are flocking in. So yeah, I Agreed. think the Not just prospects are great. private equity in any side, like tech side, audit side, जिस भी friends I'm talking to, everywhere ये automation के बारे में everybody is talking. So idea वही है कि हम अपने आप को continuously upskill करते जाए. Like हमारी offline भी conversation हो रही थी कि we keep upskilling ourselves so that ये हम इस चीजों से threaten ना, and we actually embrace the tech rather than fear it. जो Of course. mostly मैं देखती हूँ finance professionals थोड़ा सा like hesitant रहते हैं to embrace the tech. But हाँ, मतलब that should be the idea to embrace the tech. So I think that should be like a tip. Then मुझे also one other thing. ऐसे में काफी like this is one of the case that I want to talk to you about. I recently saw a resume एक MBA professional का, and he's very good with tech. Tableau का knowledge है, Power BI का knowledge है. फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को jobs ढूंढने में दिक्कत आ रही है. कहीं ना कहीं resume में वो चीज नहीं लोगों के दिख पाती है जो मे बी जो भी उन्होंने वर्क करा हो, जो भी नॉलेज हो. इसके लिए अगर आपके पास कोई एक टिप हो कि हाउ कैन पीपल हु हैव नॉलेज कैन शो इट ऑन देयर रेज्यूमे सो दैट वो जॉब सर्च में इजी पड़े. I think job search is like a it's a tough market right now. So I can understand कि लोगों को दिक्कत हो रही है, but there is another thing which I'll just continue from the our last like हाँ. part of the conversation, कि ये field बहुत ज़्यादा evolve हो रही है. So in 2017 when I started, it was data analytics, right? राइट. तो basically आप ग्राफ, चार्ट, टैबलू, पावर बीआई ये सब काफी बूम कर रहा था, लोगों को जॉब मिल रही थी. देन केम कोविड. कोविड में बीआई वगैरह प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने लगी जो बेसिकली टैबलू एंड पावर बीआई पे काम करते हैं, राइट?
But now, because again, fintech people, like finance people are also learning Power BI and राइट, Tableau. हाँ, मार्केटिंग वाले भी सीख रहे हैं. तो जो टेक savvy लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, अगर वो केवल ये स्किल लेके जाएंगे तो probably people won't buy that, right, in the market. राइट, इंडस्ट्री शायद अब उससे आगे बढ़ गई है. तो अभी आई थिंक इन माय पर्सपेक्टिव, सॉफ्ट स्किल्स, अगेन नॉलेज ऑफ एआई राइट, सर्टिफिकेट्स, इट हेल्प्स. पावर बीआई, टैबलू, ये आई थिंक अब कॉलेज में बता रहे हैं. तो ये लोग हुँ, हुँ, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आ जाएगा, आपको सिखा देंगे, या फिर प्रोबब्ली एक कन्वर्सेशनल बीआई भी आ गया है कि आप डेटा दोगे वो खुद इनसाइट बता देगा, यू डोंट नीड टू मेक करेक्ट, चार्ट्स. हाँ, एक्चुअली, सो दैट इज द मेन रीजन. अभी यू विल सी कि जो लोग केवल टैबलू एंड पावर बीआई पे रिलाई कर रहे थे, बेसिकली लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हुँ, हुँ, वो वाला जो किस्सा था, शायद शायद इट्स डेड. इट्स नॉट डेड येट, बिकॉज लाइक पीपल आर मेकिंग, स्टिल मेकिंग डैशबोर्ड, एंड अडॉप्शन अभी हुआ है, स्पेशली इन फाइनेंस, क्योंकि लेगेसी सिस्टम्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप तुरंत से चेंज करके एआई नहीं लगा सकते. इट विल टेक टाइम, बट इट इज गोइंग टू हैपन इन लाइक 4-5 years. एब्सोल्युटली, You'll see those changes. So yeah, नहीं, नहीं, I आई would say कि problem solving skills, and the other one is like soft skills and certification around like data science, हुँ, not just like Power BI and Tableau. So that will help. agreed, absolutely. then मुझे one other thing I wanted to ask you कि ये भी मैंने काफी ज्यादा ट्रेंड देखा है resumes में कि people suppose make a project, they do a analysis and then resume में उस चीज का वो project देते हैं. so ये मुझे आपसे पूछना था कि अगर आपकी टीम के लिए ऐसा कोई आपके पास resume आए तो क्या आप कहेंगे कि the chances of hiring that person gets higher versus somebody who's not done a project or has not done any practical application of the knowledge. So आपको लगता है अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मैटर करता है क्या? Of course, the more is merrier, right? The more the merrier, we say that. So गॉट इट। obviously अगर आप लेके आओगे मेरे पास, and if your resume is shortlisted based on like some parameters, जो कि अलग requirements भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें, whether we want freshers or not, हाँ, like, हाँ, but if it get through, then obviously questions के around होंगे, and if the person can impress me कि उसने ऐसा किया, and उसका if I see कि problem solving skills, again I'm like राइट, for राइट, I'm हाँ। like I took like hundreds of interviews, right? हुँ, हुँ, Especially हुँ, कोविड में बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही थी. लास्ट ईयर भी मैं 4 कैंपस में गया था इन 4 IITs हुँ, हुँ, फॉर हायरिंग. तो वहां पे भी वी फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि गॉट इट। टेक अगर आप कंफर्टेबल हो, इफ यू डोंट नो पाइथन, वो सीख जाओगे आप 2 महीने में, 3 महीने में. एवरीथिंग यू कैन लर्न, बट आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एंड आप कैसे कन्विंस कर सकते हो अपने हुँ, सॉल्यूशन के बारे में. अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो यू हैव टू कन्विंस कि मेरा ये रैशनल था, मैंने ये लिया, इवन इफ इट इज कॉपीड, वी नो लाइक इट इज कॉपीड, प्रॉब्ली यू हैव राइट, कॉपीड राइट, फ्रॉम हाँ, हाँ, समवेयर. एब्सोल्युटली। बट आपको कन्विंस करना पड़ेगा अगले को कि आप, मतलब, यू कैन थिंक एंड यू कैन सॉल्व हुँ, प्रॉब्लम्स. हुँ, नहीं, मेक सेंस। मुझे वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील साइन ऑफ। वो ये था कि जैसे अभी आपने बोला आपने लाइक हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज लिए हैं, आप आईआईटीज में भी गए हैं। अगर मैं आपसे क्विक पूछूं कि वन स्किल विच यू थिंक इज मिसिंग अदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई नो आपने बहुत एम्फेसिस दिया है एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज समथिंग दैट मैं भी बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर अ मस्ट। आप सब सीख सकते हो बट जब तक आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, वो ट्रस्टिंग योर सिक्स सेंस, फाइंडिंग योर गट, वो सब नहीं है, तब तक it becomes like doesn't really add a lot of to your profile. But हाँ मुझे one skill that you think is missing in people and then they can work on across IITs, across hundreds of interviews that you've taken. So basically, I think you should anticipate questions in interviews. अगर आपको पता है, Okay. आप प्रिपेयर होके जा रहे हो चीजों के लिए कि ये मेरे से पूछा जाएगा, इट्स नॉट हार्ड टू गूगल एंड एवरीथिंग. हाँ, वी नो हाँ, कि आप पढ़ के आए हो कहीं से, एंड इफ यू नो द लाइक, इफ यू कैन लाइक ड्राफ्ट दोस क्वेश्चंस, ऐसा लगे कि वो स्मूथ आ रहा है, राइट? तो right. इट इंक्रीजेस योर चांसेस बाय 30-40%, लाइक कि आप सिलेक्ट हो गए. लाइक कि आप इतने ज़्यादा इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड थे कि यू न्यू कि कौन-सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका क्या आंसर मैं देने वाला हूँ. बिकॉज़ सारे क्वेश्चन्स अवेलेबल हैं, एंड प्रोबब्ली लाइक यू कैन रियली, आपको प्रोबेबिलिटी पता होता है कि कौन हाँ, क्या हाँ, हाँ, पूछने वाला है, राइट? टेक स्किल्स असाइड कि थोड़ा-सा होना चाहिए, बिकॉज़ कैंपस में हम वो नहीं देखते हैं. हम्म, बट ऑब्वियसली टेक हम टेस्ट करते हैं कि कितना आप, वेदर यू कैन, आफ्टर एलएलएम आल्सो वी right, लाइक yeah. आस्क पीपल टू राइट एंड ऑल, राइट? जस्ट टू चेक कि भाई एक्सपीरियंस है कि नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चेक.
बट द थर्ड थिंग वी चेक कि आप कितने कंफर्टेबल हो क्वेश्चन से, राइट? गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम बहुत इजी देते हैं, वी स्टार्ट विद द इजी वंस राइट, हाँ। एंड देन हम लेवल बढ़ाते हैं, राइट? तो आपको वो इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या पूछा जाने वाला है, एंड इट आप गूगल कर सकते हो, वो मिलेगा आपको ऑफ हमेशा। कोर्स, हाँ। नहीं, वाओ सो जन्मत, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है चांसेस को। आई थिंक वो मिस हो, काफी लोग मिस कर जाते हैं इन चीजों को, दे मतलब फोकस टू पीपल मच ऑन फोकस टेक। टू मच ऑन द टेक, और वो ये बेसिक इंटरपर्सनल स्किल, लाइक हाउ टू डू द स्मूथ टॉक, बेसिकली वही मिस कर जाते हैं। करेक्ट। सो गॉट इट। इट शोज कि आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाओगे, राइट? थोड़ा राइट। सा आपका टेक कम भी है तो, बट आप फिट हो जाते हो तो विल टीच यू एवरीथिंग। नाइस जन्मजय, लाइक सच में ऑल of the advice that you've given regarding certifications या फिर how can people enter this into field, आगे career growth क्या रहेगी, and like one tip which you can give to the freshers, like I personally think they've been very helpful. So guys, to all of our viewers, we are signing off for today, and thank you again so much Vijay for being such a nice speaker, and like for actually enlightening people और genuine tips देने के लिए. Also, guys, cannot insist more. अब तक तो पता चल ही गया होगा. Still, if you don't remember, don't forget to subscribe me at CA Prachupadhyay. Thanks everyone. We are signing off for today.